Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online lecture series on electronic devices and circuits. This is Muhammad Uwais, your course instructor. Welcome to this last online recorded lecture on electronic devices and circuits. Remember, this is the 28th of this series. And so far, we have discussed various topics of this course. And recently, we started the topic of operational amplifiers. So previously in operational amplifiers, we have discussed various configurations. We spent some time on non-inverting configuration. And in our last lecture, we did start the topic of non-inverting configuration. So we are continuing with this topic of non-inverting configuration. In this class, we are going to solve some examples which are related to non-inverting configuration. So without wasting any time, let's move on. So here we have a question which we have to solve using superposition principle in order to find the output voltage. Here is our output voltage and we have to use superposition principle. So superposition principle क्या होता है students? When is it used? When we have multiple inputs. ठीक है? So here what we are gonna do is कि we have two inputs. If you see, it is V1 and V2, and both of these are connected through some resistances to the non-inverting terminal, to the positive terminal, ठीक है, of this operational amplifier. So the configuration which we are gonna use will be non-inverting configuration. और हम करेंगे क्या, हम एक वक्त में सिर्फ एक इनपुट को लेंगे. फॉर इंस्टेंस वी विल कंसिडरिंग V1 एंड वाइल V2 विल बी kept off. ठीक है, it will be turned off. किस तरीके से? V2 will be simply short circuited. ठीक है, तो V2 को ग्राउंड कर देंगे हम. V2 will be grounded and we shall have only one source V1 and then we shall find out the value of V0. ठीक है, similarly then we will do this for V2. V2 will be used, V1 will be turned off, and then we find out the value of our output voltage. Once we have the two output voltages, by superposition principle, the total output voltage is simply the sum of the two output voltages for the two cases. Okay. लेकिन इस सब के लिए पहले we need to know कि हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है फॉर आउटपुट वोल्टेज. सिंस दिस इज नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन, तो हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो क्या होगा? गेन का फॉर्मूला होगा 1 प्लस R2 अपॉन R1. रिमेंबर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने ये ड्राइव किया था. So V0 can be written as 1 plus R2 upon R1 into Vin. और यहाँ पे अगर आप देखें तो R2 की वैल्यू कहाँ है आपके पास? Where is R2? This is your R2. ठीक है, and what is the value of R1? This is the value of R1. So अगर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, you will see that V0 is 10 times the input voltage. Okay, so now let's proceed with superposition. As discussed, we know, but before actually going into the superposition, let's have a look कि ये भी input voltage है कौन सा. ठीक है, ये है input voltage आपको नजर आ रहा है. This is not this voltage V1 nor is this voltage V2. This is actually the voltage which is at the positive terminal of the op amp. ठीक है, non inverting terminal Vin. So हमें करना ये होगा कि we have to find out the value of this input voltage for each of these two cases. ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक इट इज V नॉट इज V01 प्लस V02 एंड V01 का मतलब क्या है? बेसिकली दैट वी आर ओनली कंसिडरिंग V1 एट दिस टाइम, देन दिस विल बी V01. सो V02 कब होगा हमारे पास? व्हेन वी आर कंसिडरिंग V2. सो लेट्स प्रोसीड. तो हम करते हैं क्या है, सबसे पहले V1 को यूज करते हैं एंड V2 को हम टर्न ऑफ कर देते हैं. ठीक है जी. वंस V2 इज टर्न ऑफ, V2 को टर्न ऑफ करने का मतलब क्या है? V2 को टर्न ऑफ करने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि हम इसको ग्राउंड कर दें सिंपली. ठीक है, तो जब व्हेन V2 इज ग्राउंडेड, तो अब देखिए आपके पास, रिमेंबर देयर इज नो करंट फ्लोइंग हियर, दिस करंट इज जीरो. तो आपके पास V1 है तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा और उसके बाद यही करंट आपके पास यहाँ फ्लो करेगा. तो बेसिकली ये सर्किट आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा that you have a 2 kilo ohm resistor and then you have a 3 kilo ohm resistor which has been grounded. And this voltage is going to be our Vin. ठीक है, I hope this point is clear. This is very important. So अब आप देख सकते हैं कि ये 3 किलो ओम का जो रेजिस्टर है और जो 2 किलो ओम का रेजिस्टर है, ये दोनों हमारे पास क्या है? दे आर इन सीरीज. ठीक है, एंड हियर द इनपुट वोल्टेज इज V1.
So we can apply voltage divider. Why? Because these two are in series. ठीक है, as there is no current flowing into the op amp. So voltage divider क्या होगा हमारे पास? Voltage divider would mean that V in, जिसको मैं V in 1 कहने जा रहा हूँ, V in 1 because इस वक्त मैं V1 को यूज करूँ, source V1, therefore V in 1 is equal to 3 upon 3 plus 2, which is 5 into V1. So V in 1 comes out to be equal to 0.6 V1. ठीक है, once we know the value of V in, we can use this relationship to find out the value of V naught 1. ठीक है, तो it is simply 10 into V in 1. तो आपके पास क्या हो जाएगा रिलेशन? V naught 1 will be equivalent to 10 times into 0.6 V1, which is 6 V1. So this is for V in 1. Exactly the same has to be repeated to find out the value of V in 2. ठीक है, तो V in 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? लेट्स रब दिस आउट, इस पार्ट को रब कर देते हैं। ठीक है जी, अब हमें करना ये है कि अब हम V1 को ग्राउंड करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू ग्राउंड V1, सो दिस इज ग्राउंडेड एंड नाउ वी हैव दिस सोर्स V2। ठीक है, तो इनपुट पे हमारे पास क्या है? V2, तो मैं यहाँ पे इसको V1 की जगह V2 कर देता हूँ। ओके, हैव अ लुक, दिस इज V2। अब क्या होगा हमारे पास? V2 के बाद हमारे पास पहले 3 किलो ओम का एक रेजिस्टर आ रहा होगा, and then we shall have a 2 kilo ohm resistor, and these are now in series with each other. ठीक है, ये सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, उसको मैंने रीड्रॉ कर दिया है आप लोगों के लिए यहाँ पे। So now V in, which is V in 2 now, this V in 2 is again can be calculated using simply voltage divider. तो voltage divider हम apply करते हैं। Once you apply the voltage divider, then rest part is very easy. So it's just 2 divided by 2 plus 3 into V2, 0.4 V2। ठीक है, एंड V नॉट 2 कैन बी फाउंड आउट यूजिंग द सेम रूल जो हमने पहले यूज किया था। सिंपली इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वी शैल हैव 4V2। ठीक है, so I hope this is very clear to you. Lastly, what we have to do is we just have to sum these two together and then we shall have our total output voltage. ठीक है जी, so here we see it is actually the sum of two voltages. So V naught is equivalent to 6V1 plus 4V2. तो आपने देखा किस तरीके से हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके यहाँ पे भी मल्टीपल इनपुट्स को कंसिडर कर सकते हैं और आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं। So students, this is now your home task. This is almost the same question with a slight change. ठीक है, सर्किट आपके पास एग्जैक्टली सेम है, लेकिन सवाल में आपसे कहा गया है कि इस सर्किट में आप जो 1 किलो ओम का जो रेजिस्टर आपको नजर आ रहा है, इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एंड कनेक्टेड टू अ थर्ड सिग्नल सोर्स V3। ठीक है, तो हम करने क्या जा रहे हैं कि इस ग्राउंड को यहाँ से खत्म करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम एक सिग्नल और बना रहे हैं, एक और इनपुट ले रहे हैं विच विल बी नाउ V3। करना क्या है? वी अगेन हैव टू यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एंड सुपरपोजिशन जब आप यूज करेंगे तो V1 और V2 का जो पार्ट था इट वुड रिमेन सेम। एज यू कैन सी इन द आंसर, दिस इज एग्जैक्टली द सेम। बस अब आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कंसिडर दिस V3 एज वेल। तो V3 के लिए बड़ा आसान काम है, हम यही सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हेन द केस इज फॉर V3, उस वक्त क्या होगा? V1 एंड V2 विल बी ग्राउंडेड, सो हमारे पास दिस पार्ट विल बी सिंपली ग्राउंडेड। इन दोनों को हम एक साथ ग्राउंड कर देते हैं। अब ये जब ये दो रेजिस्टर्स ग्राउंड हो चुके हैं तो इनकी कोई एज सच वर्थ नहीं है। ठीक है, हमारे पास यहाँ जीरो ही अपेयर हो रहा होगा। ठीक है, बिकॉज नो करंट इज फ्लोइंग इनटू द टर्मिनल, सो दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, सो एक्चुअली इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। फिर हमारे पास सर्किट क्या बन जाएगा? दिस विल नाउ बी जस्ट इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन एंड द वैल्यू ऑफ गेन इज जस्ट माइनस R2 अपॉन R1 विच विल बी 9। ठीक है, सो इट विल बी 9 इंटू V3। बकिया पार्ट वो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पीछे किया था। तो ये जो आखिरी पार्ट, आखिरी आंसर में आंसर में जो आखिरी पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस इज फ्रॉम एक्चुअली ड्यू टू दिस रीजन। ठीक है, सो आई होप ये पार्ट भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह, द टॉपिक्स ऑफ inverting configuration and non-inverting configuration have been completed. We have discussed all the major topics which needed to be covered in this course, and I will be sharing some more examples with you as practice problems so that आपके जो theoretical concepts हैं वो थोड़े और improve हो जाएं once you solve these numericals. Now before actually winding up the topic, since this is our last lecture,
I would like to discuss with you an application of operational amplifier and how they can be used as comparators. ठीक है, comparators क्या होते हैं, इनकी अक्सर हमें जरूरत पड़ती है, क्या ये circuits क्या होते हैं, let's discuss that. So students, comparators are basically circuits that compare two voltages, for instance, and outputs either a one which means a high voltage, ठीक है, और a low zero कह लें आप चाहें तो उसे, या negative voltage भी आप कह सकते हैं, ठीक है, and this by this it actually indicates which is large, ठीक है, यानी which से मुराद कौन सी, जो दो इनपुट वोल्टेज जिसको आपने कंपेयर करा है उनमें से किसकी वैल्यू ज्यादा है वो आपको बता रहा होगा, ठीक है. एंड दे आर ऑफ्टन यूज फॉर एग्जांपल टू चेक वेदर कि जो हमारा इनपुट है उसने एक सर्टेन वैल्यू रीच कर ली है या नहीं, ठीक है. वेरियस एप्लीकेशंस होती हैं जिसको हम अभी मजीद देखेंगे. और अगर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जरिए देखें तो वहां पे क्या करते हैं कि हम एक कंपैरेटर बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग सर्किट है जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज कर रहा होगा, ठीक है. एंड हियर वी विल बी यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन ओपन लूप स्टेट, ठीक है, क्योंकि ओपन लूप स्टेट में जो उसका गेन है वो इनफाइनाइट है एंड वी वॉन्ट बी यूजिंग एनी फीडबैक रेजिस्टर्स, ठीक है. सो it is actually a voltage comparator and compares the magnitude of two voltage inputs and determines के इनमें से किसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है. अब कंपैरेटर की अलग आईसीज भी आती हैं और हम इन्हें सिंपल ऑप एम्प के जरिए भी बना सकते हैं. रिमेंबर जो कंपैरेटर्स की आईसी होती हैं वो दे आर एक्चुअली मेंट टू बी यूज्ड एज अ कंपैरेटर. तो आप उनके ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज गेन के तौर पे यूज नहीं कर सकते उन्हें. लेकिन अगर आपके पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी है यू कैन एक्चुअली यूज दैट आईसी फॉर वेरियस पर्पसेस. आप उससे वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं, आप उसको एज कंपैरेटर के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. सो स्टूडेंट्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जब हम यूज करते हैं एज कंपैरेटर तो उसकी एक एप्लीकेशन हमारे पास ये है कि एट टाइम्स वी नीड टू फाइंड आउट वेदर द इनपुट वोल्टेज हैज एक्चुअली exceeded a certain level, ठीक है. that level can be a zero level, it can be a non zero level as well. for instance हमारे पास एक zero level detector का सर्किट भी बन सकता है. have a look, जो सर्किट आपको यहाँ पे दिखाया गया है, this is actually a circuit for zero level detection. यानी हमारे पास इनपुट किस टाइम के ऊपर जीरो हो रहा है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यहाँ पे हमने किया क्या है कि हमने यहाँ पे जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हमने ग्राउंड कर दिया. सो दिस लेवल इज जीरो, ठीक है. वेयर एज जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पे हमने क्या कर दिए, एक इनपुट अप्लाई कर दिए, ठीक है, एक साइनोसॉइडल वोल्टेज हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं. नाउ रिमेंबर इस वक्त हम जो है ओपन लूप गेन है हमारे पास, एंड ओपन लूप का मतलब क्या है कि ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, इन्फिनिटी. सो अब क्या है कि अब हमारे पास इन दोनों के दरमियान, एंड रिमेंबर दिस टर्मिनल इज माय V2, दिस टर्मिनल इज माय V1, ठीक है. सो अब होगा क्या, अगर जैसे ही आपके पास इनके दरमियान जो डिफरेंस है, यानी जैसे ही आपके पास V2 माइनस V1 एग्जिस्ट करेगा तो होगा क्या कि चूंकि आपके पास A इज इंफिनिटी, दिस विल बी मल्टीप्लाइड एंड यू विल गेट सम वोल्टेजेस, ठीक है. सो दिस आउटपुट रिजल्ट विल बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. सो पॉजिटिव मैक्सिमम क्यों, क्योंकि आप ए को जब मल्टी ए इज इनफाइनाइट और अ वेरी लार्ज वैल्यू, ठीक है. तो जब एक लार्ज वैल्यू आपके पास एक स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो यू विल हैव लाइक समथिंग कांस्टेंट, ठीक है. फॉर इंस्टेंस अगर आप इसकी बात करते हैं कि इफ दिस वैल्यू इज 100,000, ठीक है, so this is 100,000. Let's suppose the difference is actually of 0.25 millivolt, ठीक है, जो कि बहुत स्मॉल है. So 100,000 into 0.25 मिली, ठीक है. तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल सी दैट आंसर विल एक्चुअली बी इक्विवेलेंट टू 25 वोल्ट्स. अब ये डिपेंड करेगा कि आपको आउटपुट पे 25 वोल्ट मिलना है या नहीं है. इट डिपेंड्स कि आपके पास वेदर ओपएम्प इतना आउटपुट दे सकते हैं या नहीं. रिमेंबर पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इट हैज सम सैचुरेशन, ठीक है. तो एम्पलीफायर सैचुरेट हो सकता है, ठीक है. सो आउटपुट वोल्टेज जरूरी नहीं है कि आपको 25 ही मिल रहा हो. फॉर इंस्टेंस अगर वो सैचुरेट होता है 13 वोल्ट्स के ऊपर तो यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक 13 वोल्ट्स, ठीक है. सो आपके पास पॉइंट इज दिस कि जैसे ही आपके पास एक माइन्यूट स्मॉल डिफरेंस आपके पास यहाँ पे अकर हुआ, आपने आपका जो ऑप एम्प है वो आउटपुट को मैक्सिमम या मिनिमम की तरफ ले आएगा. अब इस वक्त चूंकि डिफरेंस वाज पॉजिटिव, दिस डिफरेंस वाज पॉजिटिव, इस वजह से हमारे पास क्या हुआ कि दिस वाज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव, इट वाज अ मैक्सिमम.
अगर ये डिफरेंस लेट सपोज आपके पास नेगेटिव होता, अगर ये लेट सपोज ये -0.25 होता, तो रिजल्ट वुड हैड बीन -25 वोल्ट एंड हियर यू वुड हैड ऑब्टेन्ड -13 वोल्ट्स। तो आपके पास पॉजिटिव मैक्स या नेगेटिव मिन जो है उसमें आपके पास ये आपको आउटपुट मिल रहा होगा। ठीक है, सो बेसिकली इट व्हाट इट डज कि इट ड्राइव्स योर एम्पलीफायर इनटू सैचुरेशन। ठीक है, चलिए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं अगली स्लाइड पे। सो नाउ हियर वी हैव द सेम सर्किट। ठीक है, और अब हम करने क्या जा रहे हैं कि एक इनपुट वोल्टेज अप्लाई करने जा रहे हैं। लेट द इनपुट वोल्टेज बी एज इट हैज बीन शोन हियर। ठीक है, दिस इज आवर इनपुट वोल्टेज। अब देखना क्या है हमारे पास, हमने क्या करना है, वी नो दैट ए इज इक्वल टू इंफिनिटी, सो वी नो ए इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब होगा क्या, a has to be multiplied v naught, this v naught is simply a into v2 minus v1। अगर v2 minus v1 की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, if this is positive, sorry this is v2 minus, इसको मैं रब कर देता हूं so that clarity हो जाए, कोई confusion ना रहे। ठीक है, so this is v2 and this is v1। now if this is positive, this number is positive, अगर ऐसा है तो आपके पास क्या होगा, you will get मैक्सिमम। ठीक है, और अगर मैक्सिमम का मतलब ये है कि पॉजिटिव पीक आपको मिलेगी, पॉजिटिव पीक। और अगर आपके पास सॉरी ये वैल्यू नेगेटिव आती है, लेट दिस वैल्यू बी नेगेटिव, तो क्या होने जा रहा है, इफ दिस इज नेगेटिव तो आपके पास एक मिनिमम वैल्यू आ रही होगी, मिनिमम यानी कि नेगेटिव की जो पीक आ रही होगी। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास when input is positive, ठीक है, यानी when sine wave is positive, let it be at this value for instance। ठीक है, so this value is positive। ठीक है, and this is your v2 and this is your v1। तो इस इंस्टेंट के ऊपर आपके पास क्या हो रहा है, here यहाँ पे your v2 is a positive number and v1 is 0। ठीक है, so आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, v2 minus v1 will be, v2 minus v1 will be a positive number। ठीक है, this is positive and therefore the output will now be the positive maximum जो आपको ऑप एम्प प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्यों मैक्सिमम, क्योंकि आप इनफाइनाइट गेन से उसे मल्टीप्लाई करें ओपन लूप गेन से। सो दिस विल बी योर आउटपुट, यू सी। इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस, जो आपको नजर आ रहा है कि आपको पॉजिटिव मैक्सिमम मिलने जा रहा है। ठीक है, अब नाउ व्हाट हैपेंस, ये कब तक चलेगा, जब तक आपके पास दिस v2 इज ग्रेटर देन v1। ठीक है, फॉर इंस्टेंस कोई एक और पॉइंट देखना है तो आप इस पॉइंट पे देख लें, अगेन यहाँ पे भी जो ये डिफरेंस है, अगेन दिस इज अ पॉजिटिव इवन एट दिस पॉइंट, बट वंस दिस क्रॉसेस, ठीक है, जीरो, एंड वंस द साइन वेव गोज नेगेटिव, फॉर इंस्टेंस अब हम इस पॉइंट के ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हेयर एट दिस पॉइंट our v2 minus v1 is going to be negative। why? Because v2 itself negative, so v2 minus v1 will be negative। this means अब आपके पास जो आउटपुट मिलने वाला है वो क्या मिलना है, जो नेगेटिव का जो मैक्सिमम है, या जिसको आप मिनिमम कह सकते हैं अपने सर्किट का। ठीक है, अब वो वैल्यू आपको मिल रही होगी। सो नाउ जब अगर आप इसका सर्किट आपको बनाना, सॉरी आउटपुट बनाना हो, तो दिस विल बी योर आउटपुट। सी आपके पास ऑप एम्प क्या करे, आपको मैक्सिमम और मिनिमम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो इट्स अ हाई और अ लो। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया था कि कहाँ पे आपके पास जहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है, दैट पॉइंट इज एक्चुअली योर जीरो लेवल। ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू एक्चुअली डिटेक्ट द जीरो लेवल। ओके, सो प्रीवियस स्लाइड पे जो हमने सर्किट देखा था, बेसिकली दैट वाज फॉर जीरो लेवल डिटेक्शन। बट ये जरूरी नहीं है कि आप ऑप एम्प को सिर्फ जीरो लेवल डिटेक्शन के लिए यूज कर सकें, आप इसको नॉन जीरो लेवल के लिए भी यूज कर सकते हैं। सिंपली व्हाट यू नीड इज अ रेफरेंस। ठीक है, सो आपने दो वोल्टेजेस को कंपेयर करना है। अब यहाँ पे देखिए हम नॉन जीरो लेवल सर्किट्स की तरफ आ रहे हैं ताकि हम नॉन जीरो लेवल को डिटेक्ट कर सकें। दिस इज माई इनपुट वोल्टेज जो मैं पहले भी अप्लाई कर रहा था, और यहाँ पे जो मेरा नेगेटिव टर्मिनल है उसमें मैंने क्या किया, अब एक रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई कर दिया है। अब क्या होगा, सेम वही काम होगा। अब नाउ द कंपैरिजन विल बी बिटवीन वी इन एंड वी रेफरेंस। ठीक है, तो जब तक वी इन की वैल्यू आपके पास वी रेफरेंस की वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है, तब तक आपके पास क्या होने जा रहा है, तब तक आपके पास जो आउटपुट होगा दैट विल बी पॉजिटिव मैक्सिमम। जैसे ही वी इन की वैल्यू आपके पास वी रेफरेंस से कम हो जाती है,
ठीक है, यानी वी इन माइनस वी रेफरेंस जो कि V2 माइनस V1 है नेगेटिव हो जाता है, तो आउटपुट अगेन आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नेगेटिव, यानी कि जो सर्किट का मिनिमम है वो वोल्टेज आपको मिल रहा होगा। अब ये जो वी रेफरेंस है ये आप डिफरेंट तरीके से लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिए एक वोल्टेज सोर्स लगा सकते हैं, आप एक बैटरी लगा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सर्किट्स में इसके डिफरेंट अदर प्रोसीजर्स होते हैं। उनमें से एक हमारे पास है बाय यूजिंग अ वोल्टेज डिवाइडर। फॉर इंस्टेंस जो इस सर्किट में आपको दिखाया गया है, सो हियर वी रेफरेंस विल बी, वी रेफरेंस आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स कैसे आएगा, दिस विल बी बाय वोल्टेज डिवाइडर। सो वी रेफरेंस विल बी R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू द सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, जो आपको मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, तो दिस इज योर रेफरेंस वोल्टेज। अपार्ट फ्रॉम दैट आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस यू कैन यूज अ जीना डायोड बायसिंग, ठीक है। सो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो यहाँ पे वोल्टेज सेट हुआ है, दिस विल बी योर VZ, क्योंकि आपने यहाँ पे जीना डायोड लगा दिया है, तो जीना डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिल रहा होगा। सो वंस वी हैव द रेफरेंस वोल्टेज, देन वी कैन एक्चुअली प्लॉट आवर आउटपुट एंड सी कि हमारा ऑप एम्प किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। लेट्स हैव अ लुक। So this is actually the output for the previous circuit जो हमने देखा था with non-zero level detection। अब आपने V reference provide किया which is a positive voltage, ठीक है। In this case V reference is some value। अब जब तक V in की वैल्यू आपके पास V reference से ज्यादा है, ठीक है, जहां पे V in की वैल्यू V reference से ज्यादा है, वो कौन सा रीजन है, बेसिकली इट इज दिस रीजन, ठीक है। इस रीजन में आपके पास V in की वैल्यू V reference से ज्यादा है। सिमिलरली यहाँ पर तो इस रीजन में क्या हो रहा है, आपके पास आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है पॉजिटिव, ठीक है। और जब वी इन की वैल्यू आपके पास वी रेफरेंस से कम है तो क्या हो रहा है, आपको नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है, जो मैक्सिमम नेगेटिव है और द मिनिमम वोल्टेज, ठीक है। इसके रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। रीजन क्या है स्टूडेंट्स, इज जस्ट ए V2 माइनस V1। सो आपको ये देखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2 माइनस V1। इफ V2 माइनस V1 इज अ पॉजिटिव नंबर, you will get a maximum, ठीक है। so this is V2 minus V1 positive, ठीक है। इस केस में this is V2 minus V1 positive and this is basically this is or this refers to negative V2 minus V1, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ये जरूरी नहीं है कि V रेफरेंस एक पॉजिटिव वोल्टेज हो, आप एक नेगेटिव वोल्टेज भी बना सकते हैं, फिर अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि आउटपुट किस तरीके से बनना है। Now let's have a look at this example. Example this is from Floyd, ठीक है। फ्लॉइड का ये सर्किट है, हमें एक सर्किट गिवन है और दिस इज आवर इनपुट वोल्टेज विच हैज बीन अप्लाइड, ठीक है, टू दिस कंपेरेटर। ये बेसिकली कंपेरेटर के तौर पर हम इसे यूज करने जा रहे हैं। ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है, ये आप हमेशा अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ द आउटपुट शोइंग इट्स प्रॉपर रिलेशन टू द relationship to the input signal. Assume the maximum output levels of the comparator are प्लस माइनस 14 वोल्ट। मतलब क्या है, 15 वोल्ट वैसे तो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन जो पॉजिटिव का मैक्सिमम है वो आपको जो मिल सकता है मैक्सिमम वो क्या है, 14 वोल्ट, और जो नेगेटिव का मैक्सिमम आपको मिल सकता है वो माइनस 14 वोल्ट, बिकॉज ऑफ सेचुरेशन, जो मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, वी फर्स्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज, ठीक है, एंड दिस वोल्टेज विल बी अवर वी रेफरेंस, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी रेफरेंस एंड वी रेफरेंस विल सिंपली बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसकी वैल्यू। So now the reference voltage can simply be found out by using this voltage divider rule, ठीक है, and you see that V reference is equal to 1.63 volt। अब हमने करना क्या है, we know that our input is a sinusoid, ठीक है, with a peak value of 5 volt। तो अब हमने उस इनपुट को कंपेयर करने हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस वोल्टेज। सो रेफरेंस वोल्टेज इज 1.63। जब तक आपके पास इनपुट इज ग्रेटर देन 1.63, यू शैल हैव द मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज एट द आउटपुट, ठीक है। और जैसे ही आपके पास V in goes लेस देन V रेफरेंस, आपके पास आउटपुट विल बी मैक्सिमम नेगेटिव, ठीक है। बेसिकली हम डिफरेंस देख रहे हैं V2 माइनस V1 के दरमियान, ठीक है। सो इस रीजन में जो हाईलाइटेड रीजन है, इस रीजन में V2 माइनस V1 का जो डिफरेंस है दैट इज पॉजिटिव, और जो रीजन हाईलाइटेड नहीं है उस तमाम रीजन में हमारे पास दैट डिफरेंस इज एक्चुअली नेगेटिव। सो अब क्या होगा, आपको आउटपुट मैक्सिमम प्लस 14 मिल रहा है और नेगेटिव जो आउटपुट है वो मैक्सिमम आपको माइनस 14 मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपेरेटर की सर्किट्स को बनाते हैं और इस तरीके से हम उनके आउटपुट को प्लॉट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सो विद दिस वी हैव रीच द एंड ऑफ दिस टॉपिक। इसके अलावा भी एडवांस आपके पास कंपेरेटर सर्किट्स होते हैं जिनको मैंने अभी
जानबूझ के आपके साथ डिस्कस नहीं किए हैं, टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। एट टाइम्स हमारे पास कुछ फीडबैक के लिए कंपोनेंट्स यूज होते हैं, लेकिन वो अभी मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस नहीं किए, ठीक है। ज़रूरत पड़ी तो फिर किसी और दिन आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूंगा। बट बिफोर एंडिंग दिस टॉपिक एंड बिफोर एंडिंग द कोर्स, मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम दे रहा हूँ फॉर कंपेरेटर्स, जो मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें सॉल्व करें, ठीक है। प्लीज सॉल्व दीज सर्किट्स और ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म्स। जहाँ आउटपुट लेवल पूछा हुआ है वहां बताइए, और inshallah then I will discuss the results with you in our interactive session. And with this we have reached the end of our course. Alhamdulillah, we have been able to complete the course and cover the course 100% on time despite the pandemic. For this I am extremely thankful to Almighty Allah and to all of you my students for joining me, for listening to my lectures, for joining me during my interactive session as well. I would also like to acknowledge all the references which I have been used. It has been my privilege to use these references in my course. I hope this course actually helps you in your career as well, and inshallah this will add more and more value to your engineering knowledge as well. Thank you so much. It's Muhammad Uwais signing off. Allah Hafiz.